So let's begin then. So how was the week going on with economics? If you practice in the initial, you can say these days, even if you practice one question daily or an alternate question, right? So that is you will yourself see the difference. You might be able to recollect points quickly. You should be, I think, now in a position to at least understand the demand of the question, what the question is expecting out of you. So any problem that you face during the practice sessions that you're doing on your own, I want to know any problem, so that I will mold the things in a manner today that it'll be helpful to you, right? Because the motive is to help you increase your speed, increase the thought process in the right direction. So it should be helpful, right? Asked in 2017, right? They will ask you such easy questions also, but easy ke saath mein kya hai, they have asked so many things in this question that it will become very difficult for you to write it in 12 or 13 minutes. But अभी आपको इस क्वेश्चन के थ्रू ही रियलाइज होगा कि आपको बहुत कंटेंट नहीं चाहिए, ठीक है, मिनिमम कंटेंट, लेकिन सिर्फ कीवर्ड्स ड्रॉप हो पाएंगे, राइट? सो द क्वेश्चन इज how do subsidies affect the cropping pattern? Let me read out the question first. How do subsidies affect the cropping pattern, crop diversity, and economy of farmers? What is the significance of crop insurance, minimum support price, and food processing for small and marginal farmers? Right? They have asked so many things, so many dimensions to write. How do subsidies affect the... So they have asked about the impact of subsidies on the cropping pattern, then on crop diversity and economy of farmers. What is the significance? What is the significance of crop insurance, MSP, and food processing for small and marginal farmers? So this was a 15 marker in 2017. Now you have to write the answer in 250 words, right? Wherein you have to answer broadly 6 aspects. The effect, right? Let's go by the keywords. How do subsidies affect the... One thing is the cropping pattern, second is your crop diversity, then is your economy of farmers. Then what is the significance of... 3 things they have asked: crop insurance, MSP, and food processing for all these 3 for small and marginal farmers, right? So isme do you think that you have so much you need so much content to write? Now first let me know how many of you feel that yes, you have you don't have adequate knowledge about the topic and adequate content to write the answer. I want to know. Yes, let me know how many of you feel that after reading the question and after seeing it, that you will not be able to write 250 words, or is it that you think that yes, you will be able to write good points, and many of you think that you can write, and many of you think that yes, you don't have the sufficient content. You won't be able to. And
Do you are you clear about the term subsidy? What is subsidy? Why is it given? Tooling first part and second part. We'll discuss it. There is the question itself. You know about the topic, and do you know who are small and marginal farmers? Key terms को उठाओ. Do you know who are small and marginal farmers? 10 minutes. Okay. Less than 2 hectares. Yes. Fine. So you have an idea, and many of you don't. So let's again go back, and now this question can also be, answered even if you don't have knowledge about the topic. कुछ भी नहीं आता है, still you can write the answer. The problem is एक वो माइंड ऐसा माइंडसेट बना लिया कि हमने नहीं पढ़ा है so we cannot write, right? ऐसा बच्चे you people don't have to think in that manner. That will be very detrimental because it's not necessary. On the face value, you can see that yes, you are feeling that you don't have the knowledge about cropping pattern, the economy, the crop insurance, right? लेकिन जब when you pick up the pen, what I think is एक general 2-3 points on each you should be able to write. There is no, एक सिर्फ आपका mindset है जो आपको block कर रहा है. आपको ये भी पता है कि सब्सिडी क्या होती है, राइट? आपको पता है कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, कि हम किस पैटर्न में क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, दैट इज अ क्रॉपिंग पैटर्न, राइट? वेदर इट इज मोनोकल्चर और इज इट मिक्स्ड क्रॉपिंग, हम एक प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, मल्टीपल प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है? सिर्फ इतना समझो. देन क्रॉप डाइवर्सिटी क्या है? एज द जस्ट गो बाय द टर्म क्रॉप डाइवर्सिटी, वही दैट आई टॉक्ड अबाउट द कि कितना क्रॉपिंग आपका डिफरेंट, आप उस फील्ड में ईयर बेसिस पे कितना आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, कितने क्रॉप्स ग्रो कर पा रहे हो, या एक ही टाइम पे कितने ज्यादा क्रॉप्स आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है? बोथ द सिनेरियो. देन इकोनॉमी ऑफ फार्मर्स. इकोनॉमी ऑफ फार्मर्स क्या होगा? ऑब्वियसली इट इज रेफरिंग टू इनकम, प्रोडक्टिविटी, ठीक है? जो हमने एनालाइज किया था लास्ट क्लास में, ठीक है? क्वेश्चंस उसी उस पे रेजोनेट कर रहे हैं. फार्मर इनकम की बात हो रही है. सिग्निफिकेंस. अब इस क्वेश्चन में यू वर आस्किंग कि इनको हम कनेक्ट कैसे करेंगे. इसमें कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है. द क्वेश्चन इटसेल्फ इज आस्किंग यू 2 डिफरेंट थिंग्स. बस जो पूछ रहा है क्वेश्चन उसको आपको आंसर करना है. आपको खुद से उसमें इंटरलिंकेज या कनेक्टिविटी नहीं बिठानी है. जैसे ही आप आंसर लिखने लगोगे, आप उसकी सब हेडिंग्स बनाओगे, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता जाएगा, राइट? बिकॉज देखो, खुद ही यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा. इसमें देयर इज नो नीड टू इंटरलिंक थिंग्स. यू जस्ट पिक अप द कीवर्ड्स, राइट पॉइंट्स अंडरनीथ इट. जहां कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है वहां होगी, बट यहाँ पे नहीं है, राइट? देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस. क्रॉप इंश्योरेंस का सिग्निफिकेंस क्या है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो देते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए? फूड प्रोसेसिंग की क्या इंपॉर्टेंस है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए, ठीक है? सो टू बिगिन विद, हु आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स? अ फार्मर हु इज कल्टिवेटिंग as owner. He can be an owner also, not only a tenant. As an owner, tenant or sharecropper, fine. up to आपका मार्जिनल फार्मर क्या होता है? जिसके पास लैंड जो है दैट इज अप टू कितना होगा? 1 हेक्टेयर, इससे कम, ठीक है? और स्मॉल फार्मर वो होता है जिसके पास लैंड होती है 1 to 2 हेक्टेयर, राइट? So small and marginal farmers are those who possess land less than 2 hectares. And mind you, this is the problem of agriculture, that ye both these group, they form nearly 85% of farmers in India, right? आप ये सोचो कि अब जो हमारा फार्मर है 85% ऐसे हैं जिनके पास इतनी कम लैंड है. And then we are talking about so many things. So this is the, basic problem. कि equity नहीं है, equality भी, equity भी नहीं है, in terms of land, in terms of the farmers. So
85% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बट दे ओनली हैव नियरली 45% ऑफ कल्टिवेबल लैंड. लैंड कितनी कल्टिवेबल लैंड जो है ओनली 45%. बाकी rest lies with 15% of the farmers, right? So this is from where so many issues, they are coming up. आपकी farmer suicide है, ये सब they can be linked to all this, right? So do you want me to discuss give you 5-10 minutes on about subsidies, what are subsidies and all, or you are okay with it? So let's discuss for 5 minutes, right? What are subsidies? You all might be knowing what is subsidy, but let me tell you from a different perspective. Okay, what is subsidy? एक simple जो आपकी normal definition है, you all might be knowing, right? What I want to tell you is, एक literally जो meaning होता है subsidy का, it means coming to assistance from behind. सब्सिडी का लिटरल मीनिंग है कमिंग टू असिस्टेंस फ्रॉम बिहाइंड, राइट? इसीलिए सब्सिडी क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ इंसेंटिव. It is a kind of incentive which plays an important role in economic development. Why? Because इसका twin purpose है. Twin purpose क्या है? The twin purpose is growth and equity of a nation. सब्सिडी उस पे वर्क करती है. Why do government give subsidy? Because एक तो वही है कमिंग टू असिस्टेंस फ्रॉम बिहाइंड. अब अगर आपकी कंट्री में प्रॉब्लम है कुछ है तो इट्स ऑलवेज इट्स एन एक्शन बेस्ड विच द गवर्नमेंट हैज टू इनिशिएट टू realize the twin objectives of growth and equity. And how growth? By growth कैसे होगी? By stabilizing the prices of essential goods and services. इसमें है that the government it modifies the market determined outcomes. Why? Because they are given in the form of discount, you can say. राइट. सो क्या हो रहा है कि इट इज कमिंग टू असिस्टेंस ऑफ द फार्मर्स. उनको किस फॉर्म में सब्सिडी दी जा रही है? इट कैन बी कैश, इट कैन बी इन अदर फॉर्म सच एज फर्टिलाइजर सब्सिडी, एग्रीकल्चर, अदर सब्सिडीज. फाइन. सो दे आर चेंजिंग द, you can say, modifying the market determined outcomes. How? By lowering the relative price of the subsidized commodity. तो उससे क्या है, जब आप relative price कम कर दिया है सब्सिडी की वजह से, so what it will increase the demand. जो आपका नॉर्मल डिमांड सप्लाई का प्रोसेस चलता है to determine the market, that is modified through subsidy. ठीक है. उससे क्या है कि एसेंशियल कमोडिटीज जो हैं वो प्राइस स्टेबलाइज होता है और जो भी आपका सिटीजन्स है उन तक पहुंचता है. सो मार्केट क्या है, एक सर्कुलेशन में आती है. द इकोनॉमी इज comes into circulation, the money flow is increased, so it will lead to growth, right? So एक ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ, दूसरा है इक्विटी ऑफ द नेशन. इक्विटी कैसे होगी? बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द इनकम इन फेवर ऑफ पुअर पीपल. फाइन. सो बेसिक आइडिया सब्सिडी के पीछे ये है, राइट? तो यू शुड बी एबल टू पुट इन फ्यू ऑफ द थिंग्स, इवन इफ नॉट. आपको ये आपके बेसिक उसमें क्लियर होना चाहिए कि क्यों सब्सिडी, राइट? देन ऑल्सो
there can be a question in prelims also that subsidy is the converse of, आप इसको यहां भी लिख सकते हैं that it is the converse of. सब्सिडी किसका कन्वर्स होगा? आई वांट टू नो. वन टर्म. Subsidy will be the converse of. I want to know about. Give me one term for that. It will be the converse of. Good, Sarthak. Which type of tax? Which tax? Yes. Good. Direct tax? No, Aman. How can it be? It will be the converse of indirect tax. Right? आपके जो taxes हैं, how? From prelims point of view, you have to be very specific. अगर option में होगा indirect tax, direct tax and other options, so you will choose indirect tax. But in mains, when you're writing the answer, you can simply write taxes, right? It doesn't make a difference. But the idea is कि आपने ये चीज लिखी that it is the converse of taxes. Many people will not be writing such things. Just in the definition itself, if you're writing it, it gives the examiner the impression that yes, you are very clear with things. ठीक है. अब इसी चीज से आप you should have the insight or you should gain that knowledge that कितना डिफरेंस है प्री और मेंस में. प्री में आपको फैक्ट्स एज इट इज और टिपिकल स्पेसिफिक फैक्ट्स चाहिए, लेकिन मेंस में ऐसा नहीं है. आप इनडायरेक्ट टैक्स का डायरेक्ट भी लिख सकते हो और रादर यू कैन राइट ओनली टैक्सेस, दैट विल आल्सो सफाइस. फाइन. तो देखो ये डिफरेंस है, इसी चीज को आपको समझना है while reading, while preparing, while writing. ठीक है. So it is the converse of tax. Why? Because the taxes, they reduce the disposable income and आपकी जो सब्सिडीज हैं they inject money in the market. ठीक है. आपकी मनी है वो सर्कुलेशन में आती है, राइट? सो subsidy is the converse of indirect tax. Then what are the types of subsidies that are given in India are, so the subsidies in India broadly, there are economic subsidies and social subsidies, राइट? और आपकी इकोनॉमिक सब्सिडीज में क्या क्या आती हैं? आपकी एग्रीकल्चर सब्सिडी, इंडस्ट्रियल सब्सिडी, देन इज योर इरिगेशन एंड फूड, योर पावर एंड एनर्जी, transport and your communication and others, right? This is under your economic subsidies. और आपकी social subsidies क्या दी जा रही हैं? On education. फिर है आपका health care, water supply, sanitation, rural housing, women empowerment and others. तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि ये जो ब्रॉडली जो स्कीम्स आपकी गवर्नमेंट में दे रहे हैं, राइट, जो अपकमिंग स्कीम्स हैं, बिकॉज देयर इज अ हायर नीड टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम. वो इनकम गैप बहुत हो जा रहा है, राइट? सो द बेसिक स्कीम्स दैट आर कमिंग अप, दे आर फोकसिंग ऑन ऑल दीज सेक्टर्स. आपकी एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, आपका सैनिटेशन ड्राइव जो इतना ये स्वच्छ भारत और ये सब चल रहा है, इट्स ऑल कमिंग आउट ऑफ हियर. ठीक है. आपका विमेन एम्पावरमेंट, आपके जेंडर इश्यूज, ठीक है. सो एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड. अब यही चीजें जो स्कीम्स हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2, लेकिन हम उनको लिंक कर पा रहे हैं विद सब्सिडीज एंड योर इकोनॉमी पेपर, राइट? सो डोंट कंपार्टमेंटलाइज थिंग्स. यू हैव टू ट्रांसफर योर नॉलेज फ्रॉम रिस्पेक्टिव पेपर्स, राइट? एंड अनदर थिंग, ये जो आपकी एग्रीकल्चर सब्सिडी है, राइट, आपका मेजर जो जा रहा है वो इसमें, ठीक है. और
इसको भी अगर हम ब्रॉडली देखें तो दिस कैन बी ब्रॉट डाउन टू 4 तरह की एग्रीकल्चर सब्सिडी दी जा रही है. दैट इज योर इनपुट सब्सिडी. फर्स्ट इज योर इनपुट सब्सिडी. इनपुट सब्सिडी में क्या है आपका? फर्टिलाइजर. देन इज योर इरिगेशन, पावर, सीड, क्रेडिट. ठीक है, इसीलिए आपका ये क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, द सिग्निफिकेंस, वो दे आर ऑल इंटर रिलेटेड. तो एक एस्पेक्ट हो गया आपका इनपुट पे, जो इनपुट लग रहा है एग्रीकल्चर में उस पे सब्सिडी दी जा रही है. ठीक है, एंड माइंड यू ये इरिगेशन, पावर सप्लाई यहाँ पे भी है, बट दे आर डिफरेंट. दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर सेक्टर, राइट. देन इज योर प्राइस सब्सिडी, प्राइस पे दी जा रही है. ठीक है, देन ऑन योर इंफ्रास्ट्रक्चर, right, and then is your export, right. So देखो, इस क्लैरिटी से आपको पढ़ना है. दैट इज वाई आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस विद यू. अगर आप सब्सिडी पढ़ रहे हैं, बस हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजर सब्सिडी है, इरिगेशन है, पावर है, बट एक कनेक्टिविटी नहीं है दिमाग में. तो वो आपको, इट्स वेरी इजी, इट विल जस्ट टेक हाफ एन आवर और 1 hour. यू जस्ट सर्च डाउन थिंग्स, बस उसको एक फ्लो चार्ट में अपने लिए बना लो. उससे आपको क्लैरिटी आएगी कि सब्सिडी क्या है, क्यों दी जा रही है, क्या ऑब्जेक्टिव है, कितने तरह की है. दैट्स इट. ये जो बर्डन है, मेन जो सब्सिडी बर्डन है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर सब्सिडी. व्हाई? बिकॉज द प्रॉब्लम इज अबाउट मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स. ठीक है, दिस इज द इशू दैट द एग्रीकल्चर सेक्टर इज फेसिंग. इसीलिए वी आर सेइंग दैट वी विल strive for efforts that will double the farmers' income by 2022. Why such things are coming up? Because of these underlying issues, right? बस आपको ऐसे ही कनेक्ट करना है और क्लैरिटी इस तरह से आएगी तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. कहीं भी आपको लगता है कि अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, राइट, तो इन्हीं पॉइंट से आप चीजें डिराइव कर सकते हो. सो यू शुड स्टडी इन दिस मैनर, राइट. सो आई होप यू आर क्लियर विथ थिंग्स ऑन सब्सिडी. ठीक है, what is it, how and why. So now let's move back to the question and just let's try to jot down few. So the question was, how do they the subsidies affect impact on. First is your cropping pattern. So let's first discuss about cropping pattern. अब अगर आपने देखो पढ़ा भी नहीं है, still you can think, then you are clear about subsidy कि yes it is given in various forms and उसका objective क्या है. ठीक है, अब अगर किसी भी क्रॉप पे हमें बहुत ज्यादा सब्सिडी मिल रही है, ठीक है, तो दिस इज ह्यूमन नेचर है. फार्मर, आप ये सोचो ना, उसने प्रॉब्लम भी आपकी मार्जिनल फार्मर जो मैक्सिमम है इंडिया में, ठीक है, प्रॉब्लम उनकी है. तो अगर हम उन्हीं को सब्सिडी दे रहे हैं तो क्या टेंडेंसी होगी कि कोई भी फार्मर है उसका जो क्रॉपिंग पैटर्न है, सब्सिडी का इम्पैक्ट क्या आएगा. जिस क्रॉप पे हमें ज्यादा एमएसपी मिल रही है या ज्यादा सब्सिडी मिल रही है, फाइन, द फार्मर विल टेंड टू ग्रो दैट क्रॉप. दैट इज व्हाई abundance of crops with high MSP. अगर MSP भी नहीं लिखना, you can say that yes, the abundance of crop which have high, on which the subsidy is given at a higher price, right? So the farmer is growing that crop. So इससे ये क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज आया है. हम लोग ट्रेडिशनल क्रॉप्स हो सकता है नहीं वो ग्रो करें, पर हाँ जिसपे उनको सस्ता पड़ रहा है, फाइन, इट इज बेसिक इकोनॉमी. जो चीज हमें कम में मिल रही है, सो दे टेंड टू ग्रो दैट. व्हाई? बिकॉज दे, उनका बेसिक लेवल ऑफ सस्टेनेंस ही नहीं है, सो दे हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, सो इससे क्या हो रहा है, एंड यूजुअली क्या टेंडेंसी है आपकी क्रॉपिंग उसमें कि हम लोग यू कैन से कैश क्रॉप्स पे ज्यादा है. ये आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, कॉटन के ऊपर बहुत सब्सिडी दी जा रही है. सो क्रॉपिंग पैटर्न में क्या है, इंक्रीज इन द एक्रिएज ऑफ कैश क्रॉप्स.
एंड केस इन पॉइंट यू कैन राइट डाउन कॉटन. अगर नहीं भी याद आ रहा है, दैट्स ओके, यू कैन जस्ट राइट डाउन के यस देयर इज एन इंक्रीज इन द एक्रेज ऑफ कैश क्रॉप्स बिकॉज उसमें कॉटन सब्सिडी में इट हैज लेड टू दिस. ठीक है, देन 2 पॉइंट्स हो गए. अब इसके लिए आई डोंट थिंक सो यू हैव टू यू नो थिंक सो मच, या आपने पढ़ा नहीं है तो आप लिख नहीं पाओगे, राइट. देन और क्या होगा क्रॉपिंग पैटर्न पे अफेक्ट. जस्ट थिंक कि अब अगर हम ये वाले क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, कैश क्रॉप्स बढ़ गए हैं, ठीक है, आपके हायर एमएसपी पे हो रहे हैं, तो उस वजह से क्या होगा. जस्ट थिंक इन योर माइंड कि उन्होंने इम्पैक्ट पूछा है, तो 2 पॉइंट पॉजिटिव के लिखेंगे, 2 पॉइंट नेगेटिव के लिख देंगे. ठीक है, राइट. सो इससे क्या है, इट विल डिस्टॉर्ट योर एग्रो इकोलॉजिकल पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, अब it will distort the agro ecological pattern. अब ये सब लिखने के लिए आई डोंट थिंक सो आपको बहुत एक्सपर्टीज की जरूरत है. दे आर जस्ट फ्लोइंग आउट. क्यों? जस्ट थिंक, सोचने से ही आ रहा है. इट विल डिस्टॉर्ट द एग्रो इकोलॉजिकल पैटर्न बिकॉज इट वाज सीन कि आपका न्यूज़पेपर में भी रहता है कि शुगर केन का प्रोडक्शन एंड शुगर केन की जो यू कैन से प्लांटिंग है दैट इज चेंजिंग. आपके नॉर्थ साउथ उसकी एरियाज डिफरेंट एरियाज आर कमिंग अप. व्हाई? बिकॉज उन पे एमएसपी दी जा रही है, तो दैट इज डिस्टॉर्टिंग द थिंग. जो आपके वाटर गजलिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इट इज ऑब्जर्वेबल दैट आपके ड्राई एरियाज हैं, दे आर गोइंग फॉर वाटर गजलिंग क्रॉप्स लाइक आपका राइस, शुगर केन, राइट. जैसे आपके पंजाब, हरियाणा में राइस कल्टीवेशन इंक्रीज हो गया है, शुगर कल्टीवेशन हो रहा है. व्हाई? बिकॉज ऑफ इट कैन बी लिंक टू सब्सिडीज. तो दिस इज अ चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न. तो इसका इम्पैक्ट ये है, इट इज डिस्टॉर्टिंग द थिंग. ठीक है, एंड और क्या होगा, इट इज इंक्रीजिंग द क्रॉपिंग इंटेंसिटी. इट इज विजिबल दैट देयर इज एन इंक्रीज इन द क्रॉपिंग इंटेंसिटी. क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होगी? दैट जिस सिंगल क्रॉप पे वी आर नॉट फोकसिंग ऑन जस्ट गोइंग सिंगल क्रॉप, जिससे हमें ज्यादा सब्सिडी मिल रही है. वी आर द फार्मर्स, दे आर ट्राइंग टू you know they are trying to grow more than one crop on the same land while subsidy मिल रही है, right. So to increase the income, to increase the output, so आपकी इंटेंसिटी बढ़ रही है एक ही पैच ऑफ लैंड में एक टाइम पे. rather than monocropping we are undertaking multiple cropping. लेकिन अगर मोनोक्रॉपिंग यही लिख देंगे तो फिर क्रॉप डाइवर्सिटी के लिए पॉइंट कम हो जाएगा. तो सब चीज यही नहीं लिख देनी है. नेचुरली इट्स कमिंग, यू हैव टू इंटेलिजेंटली यू नो bring down the points. तो यहाँ पे हम ये मेंशन कर सकते हैं कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, दैट वी आर ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप इन अ ईयर rather than a single crop due to subsidies like irrigation subsidy, seed subsidy, credit subsidy, right. So ये हो गया आपका. बस enough points, you cannot write more than this. अब इसी में you can count 1 2 3 4 5 6 nearly 25-30 words I have written over here. ठीक है, अब आपने अगर if you have to write 6 aspects, right, so अब these are just keywords. अगर आप उसको sentences में हल्का frame करोगे तो this will increase to I think 40. So you have to write 6 aspects. 6 4s are 24. 240 words. You cannot write more than this. और उसके लिए आपको बहुत ओवर पढ़ाई की जरूरत नहीं है. You just have to remember the keywords. कुछ न्यूज़पेपर से आएंगे, कुछ बेसिक रीडिंग से आएंगे, कुछ अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो जस्ट थिंक, तब भी यू कैन रीच टू दीज पॉइंट्स. ठीक है, नाउ जस्ट फोकस ऑन डोंट फोकस ऑन राइटिंग ऑल दिस बिकॉज आई विल गिव यू एवरीथिंग इन राइटिंग. जैसे आई हैड अपलोडेड दोज 2 आंसर्स. आई मेड इट अ पॉइंट सो दैट अभी इट विल बी अ लर्निंग एक्सरसाइज फॉर यू. आप सिर्फ दिमाग में सोचो wherein you can apply things and from where
you can jot down points. Everything I have ensured that you will get in the printed form. So don't worry. Each and every word I am speaking, almost everything is there, right? So then next is your effect on impact on your crop diversity. अब अगर किसी एस्पेक्ट में अगर आपने यहाँ पे ज्यादा लिख दिया है तो नेक्स्ट एस्पेक्ट में यू कैन जस्ट राइट, यू कैन से 2 points एज वेल, दैट इज जस्टिफाइड, लेकिन यू हैव टू आंसर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. तो इसमें क्या है, क्रॉप डाइवर्सिटी में क्या हो रहा है, इट इज ऑब्जर्व दैट अब किसी भी क्रॉप की इंटेंसिटी में आप ये भी लिख सकते हो कि अगर हम मल्टीपल क्रॉप्स नहीं ग्रो करें तो एक ही क्रॉप को हम बार बार ग्रो कर देते हैं, राइट? इसमें क्या है, क्रॉप डाइवर्सिटी रिड्यूस हो रही है. इट इज ऑब्जर्व, व्हाई? बिकॉज इट इज प्रोमोटिंग द कल्चर ऑफ मोनोकल्चर क्रॉपिंग, राइट? सो क्रॉप डाइवर्सिटी रिड्यूस हो रही है बिकॉज जिसके ऊपर ज्यादा सब्सिडी मिल रही है वही ग्रो कर रहे हैं. देन अगर आप देखो यहाँ पे यही अपने ही पॉइंट्स को देखो, कैश क्रॉप इंक्रीज हो रहा है, वो जो क्रॉप्स पे हायर एमएसपी हो रही है दे आर इंक्रीजिंग दैट. सो हमारी कंट्री में क्या ऑब्जर्व हो रहा है क्रॉप डाइवर्सिटी के उससे, जो आपका कोर्स सीरियल्स हैं, एंड सीरियल्स, उनकी जो शेयर है दैट इज गोइंग डाउन. आपका ज्वार, बाजरा, ऑयल सीड्स, राइट, उनका प्रोडक्शन कम हो रहा है. So crop diversity with respect to the share of the coarse grains is also reducing. Why? Because farmers, they are growing the crops on which they are getting higher subsidies or higher inputs, right? So this is about your crop diversity. Now the other third aspect is your on the economy of the farmer. Now tell me, what will be the impact on the economy of the farmer? The impact will be, first thing, over here you can write 3-4 points. इसलिए आपने अगर ऊपर वाले उसमें 2 points भी लिख दिए, it's enough. Don't worry on that. आपका इकोनॉमी ऑफ फार्मर में क्या होगा, आपका इनपुट कॉस्ट फार्मर का जो है वो बढ़ जाएगा, राइट? सो इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा तो it will help in increasing his income. As I told you, it's not always how much we can, make the profit from. A penny saved is also your profit, right? So his income, or you can say his saving, will increase. Then it will ensure the procurement of food grains because of MSP. अब आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए. देखो, अगर कुछ नहीं आ रहा है, जस्ट लुक इनटू द सिलेबस. उसमें PDS और ये सब गिवन है आपके सिलेबस में. सो ट्राई टू कनेक्ट, ट्राई टू पिक अप द पॉइंट्स फ्रॉम देयर ओनली. कुछ नहीं ध्यान में आ रहा, सिलेबस उठा लो. So that is why often the importance is given on going through the syllabus, and rather I would say memorizing the syllabus itself. ठीक है, तो उसी के की टर्म से आपको समझ में आ जाएगा. आपको मतलब इतना क्लैरिटी होनी चाहिए इस एस्पेक्ट में कि अगर आपको कोई पॉइंट नहीं आ रहा है तो आप उसको सिलेबस से कनेक्ट करो और वहां से पॉइंट लेकर आओ, राइट? सो नेक्स्ट विल बी, बिकॉज आपका देखो इम्पैक्ट ऑफ सब्सिडी, आपको क्रेडिट सब्सिडी अगर मिल रही है फार्मर को, तो क्रेडिट सब्सिडी से क्या होगा, इट विल अश्योर easy availability of loan. Easy availability of loan, right? So this will be the impact on the economy of the farmer. आपको loan availability easy हो जाती है. Also agriculture credit is a part of your priority sector lending.
अभी आप फ्री में पढ़ते हो तो डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर दो, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट भी है, ठीक है, और ऊपर से सब्सिडी भी, क्रेडिट सब्सिडी मिल रही है, तो इजी लोन अवेलेबिलिटी है, तो दिस विल बी इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ द फार्मर, उसकी इनकम बढ़ेगी, उसको लोन इजीली अवेलेबल होगा, तो he can go for diversity of crops, right, so that he comes out of his debt trap. हम फार्मर सुसाइड हमेशा इशू पढ़ते रह रहे हैं पिछले 3-4 साल से, दिस इज बिकम द सैड रियलिटी ऑफ आवर नेशन, सो इट विल रिड्यूस द डेट ट्रैप। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा ऑब्जर्वेंट रहना है एंड कीवर्ड्स तो ड्रॉप करने हैं, दैट्स इट, राइट, देन दिस इज your 50% of the question is answered. Next, what is the next aspect? I hope things are clear. Just आपका सोचने से भी आपको पॉइंट्स आ जाएंगे। आप में से जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं that yes you are not able, you have not read and then you don't have sufficient content. Do you think you need more than this? आप इतना ज्यादा पढ़ने के बाद भी कैसे ज्यादा कुछ सोच पाओगे? Yes, one addition here and there you can add data somewhere. ये कॉटन की बात हो गई, आपका थोड़ा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि राइस की कल्टीवेशन इंक्रीज हो रही है, शुगर केन का हो रहा है, बस उसी से ही। अदरवाइज इवन इफ यू राइटिंग दीज सिंपल पॉइंट्स यू विल बी गेटिंग अराउंड 4.5 4, वो आपका वैल्यू एडिशन करने से आपका 5 आ जाएगा, 5.5, बट एटलीस्ट आपका वो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है कोई भी, बिकॉज दे आर on face value it seems that yes you lack points, but जब आप सोचोगे लिखोगे things will work out, इससे ज्यादा आप लिख नहीं सकते। इसमें आप 4 पॉइंट पे भी स्टॉप हो जाओगे, things will be okay, और 3 पॉइंट भी लिख दिए that is okay, because यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हो। अगर यहाँ पे भी you are thinking of writing 3 points each, that's okay, right, so just be confident। और ये कैसे आएगा? प्रैक्टिस से, that is why every day brainstorming on one answer without reading any content, सिर्फ सिंपल लॉजिक और सिंपल वर्ड्स यूज करो। डोंट थिंक कि आपको बहुत हेवी वर्ड्स यूज करके ही कुछ होगा, नो, राइट। So then let's move further and take the other aspect of the question, that is the significance of various factors, right, of various factors on small and marginal farmers, ठीक है, इसका आप ब्रॉड हेडिंग बना के देन अगेन significance for with respect to crop insurance। क्या होगा क्रॉप इंश्योरेंस का सिग्निफिकेंस ऑन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स? अगर उन्हें हम क्रॉप इंश्योरेंस दे रहे हैं तो क्या है, इट विल गिव देम इनकम सिक्योरिटी। देखो पॉइंट्स वही हैं, यू आर नॉट टू यूज द सेम टर्मिनोलॉजी अगेन एंड अगेन, फाइन, थोड़ा सा कीवर्ड्स, तभी कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस है, थोड़ा सा यू हैव टू बी डाइवर्स, ऑल्दो द सेम आइडिया इज रेजोनेटिंग बट विद अ डिफरेंस, ठीक है। इनकम सिक्योरिटी हो रही है क्रॉप इंश्योरेंस पे, आपकी ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसका रेफरेंस यहाँ दे सकते हो, जस्ट अ रेफरेंस, ठीक है। ये स्कीम्स इस तरह से आपको यहाँ पे पुट इन करनी है, रादर देन आप उसका ऑब्जेक्टिव लिखो, ये करो, नहीं, दैट इज नॉट नीडेड, दैट इज वाई बस आपको उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे तो सिर्फ कीवर्ड ड्रॉपिंग होनी है मेंस में, nothing more than that, right? Then as I had told you about the debt trap, अगर वो पॉइंट वहां नहीं लिखना तो यहाँ पे अगर हम उन्हें क्रॉप पे इंश्योरेंस दे रहे हैं, राइट, सो क्या है, अगर कोई क्रॉप फेलियर है, इनकम सिक्योरिटी, देन इज योर, इट विल रिड्यूस द डेट ट्रैप, right, because it will act as a insurance for the bad times, you can say, famine है, कुछ है, आपकी मल्टी क्रॉप फेलियर हो गया है, so it is kind of a cushion which will help the farmer come out of his debt trap। then because आपका unpredictability है in the monsoon pattern कुछ है, ठीक है, so it will, crop insurance will increase the resilience of the farmer।
right? To face the unpredictable weather. Then is your MSP. Significance of MSP. So are you all aware what is MSP? You must be that it is the price at which the government it purchases the crops from the farmers, whatever may be the price of the crop, right? It is fixed that yes, at this price we will buy the crop. So it protects the farmer against excessive fall of price during a bumper production year. तो इसका लॉजिक यही है एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, so that it doesn't de-incentivize the farmer for not producing. कि अगर बम्पर क्रॉप है कुछ है तो कौन हमारी मार्केट क्या होगी, राइट? सो द गवर्नमेंट इट buys the purchases the crop from the farmer to prevent from all these exigencies. अब इसके पीछे ना जस्ट एक स्मॉल अंडरस्टैंडिंग यू मस्ट हैव दैट गवर्नमेंट की जो आपकी एग्रीकल्चर पॉलिसी है, इट फोकसेस ऑन 3 एस्पेक्ट्स. वो पॉलिसी 3 एस्पेक्ट में बनती है. दैट इज विद रिस्पेक्ट टू योर एमएसपी, देन इज योर बफर स्टॉक, right? And then is a food grain distribution through your PDS. इस पे government will buy the product, the crop. It will create a buffer stock and then store in the. It will create a store for the food grains and then it will distribute it to the poor. ये बेसिक एग्रीकल्चर पॉलिसी है जिसके 3 एस्पेक्ट्स हैं, एमएसपी, बफर स्टॉक एंड पीडीएस, राइट? एंड दे ऑल एक्ट टुवर्ड्स रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ. बेसिकली क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड मेकिंग अवेलेबल द एसेंशियल्स टू द पुअर पीपल, और रादर द यू कैन से मैक्सिमम पीपल इन इंडिया. तो इसका एक बैकग्राउंड आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि इतनी सारी टर्म्स हैं, कभी एमएसपी है, प्रोक्योरमेंट प्राइस है, बफर स्टॉक है, इसका क्या रिलेशन है, right? So it should be very clear in your head that yes, all these 3 are a part of the government's agriculture policy. So जो आती है for what? For your redistribution of income. Then so the other aspect is what will be the significance of MSP for the farmers. It will act as a hedge from market fluctuations, right? Why? Because it is a sort of a guaranteed price कि अगर मार्केट में सपोज बम्पर क्रॉप आ गया है एंड अगर प्रोडक्शन ज्यादा है, यू नो आपका सप्लाई ज्यादा है, तो क्या होता है? आपका प्राइस विल कम डाउन. अब अगर फार्मर ने कोई चीज ग्रो करी, राइट, एंड इट इज कॉस्टिंग द फार्मर अराउंड 20 रुपीज, लेकिन उसका बिकॉज ऑफ बम्पर प्रोडक्शन उसका मार्केट प्राइस कितना हो गया? द मार्केट प्राइस हैज बीन रिड्यूस टू यू कैन से 18 रुपीज. तो फार्मर के लिए तो इट्स अ बिग लॉस. सो द गवर्नमेंट अश्योर्स दैट वी गारंटी दैट वट एवर मे बी द सिचुएशन वी विल बी गिविंग यू 22 रुपीज फॉर द सेम थिंग, राइट? सो इट इज अ गारंटीड थिंग. सो ये जो है आपका difference is the subsidy burden. That is why that is accumulating, right? So this is about your MSP, the logic. So it is a guaranteed price. इस प्राइस पे आपका हम लेंगे ही लेंगे. Fine, the crop yield. Then so it acts as a hedge in from the market fluctuations, right? Then it acts as a financial security. पॉइंट्स देखो वही है, लेकिन यू हैव टू प्रेजेंट इट इन अ मैनर दैट दे लुक डिफरेंट बिकॉज देयर इज अ गारंटी ऑफ क्रॉप सेल. एंड देन व्हाट कैन बी द अदर पॉइंट दैट यू कैन राइट? इट कैन बी दैट इट प्रिवेंट्स द डिस्ट्रेस सेल ऑफ क्रॉप्स टू द लोकल मिडलमैन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि जब हमें पता है डायरेक्टली गवर्नमेंट इज बाइंग अस, so
जो रोल है मिडिल मैन का, टू एलिमिनेट दैट, बिकॉज अर्लियर व्हाट वाज हैपनिंग इज दे वर एक्सप्लॉइटिंग द फार्मर. वो कहेंगे ये द मार्केट प्राइस इज 18, आई कैन नॉट गिव यू मोर देन 12 रुपीज और 13 rupees. Rest would be their profit. So they were, forced to sell. और farmers में इतनी literacy वो नहीं है, इतना exposure नहीं है that they come out directly into the market. नहीं, because उनका जितना transportation cost लग जाएगा वहां आने तक, उतने में तो things will turn on the other side. उनके पास इतना पैसा ही नहीं है, right? So they were forced to sell to the middlemen. So अब अगर MSP गवर्नमेंट दे रही है, so they will not do distress sale. जब हम परेशानी में आकर सेल कर देते हैं, राइट, वो नहीं होगा. So this was about your impact of MSP. हमें सिर्फ बहुत ही जनरल पॉइंट्स विल डू द ट्रिक, राइट. आपको बहुत वो नहीं सोचना है. Then is your food processing. Significance of food processing for small and marginal farmer. अब food processing का मतलब है वैल्यू एडिशन. किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर वैल्यू एडिशन होगा. आपने आपका एक रादर देयर इज अ सेपरेट टॉपिक ऑन फूड प्रोसेसिंग, तो वहां से पॉइंट सोचो. फूड प्रोसेसिंग होगी तो क्या है, आपकी कोई भी प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन हो रहा है. अब वैल्यू एडिशन होगा तो it will lead to increase in farmer income, right? Packaged product और it's in demand also. आपका export increase हो रहा है, so उसकी farmer की income बढ़ेगी. फिर क्या है, it will lead to diversification of crops, or rather you can say diversification of income also. क्यों? Because now the farmer will be engaging in horticulture. ठीक है, आपका ऑयल सीड प्रोडक्शन, आपका वेस्टेज कम हो रहा है, राइट. सो फूड प्रोसेसिंग के से क्या है, आपकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो रही है प्रोडक्ट की, राइट. सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग फॉर द फार्मर. फूड प्रोसेसिंग आपका उससे वैल्यू एडिशन हो रहा है, फार्मर इनकम इंक्रीज हो रही है, डाइवर्सिफिकेशन हो रही है. इट विल रिड्यूस द वेस्टेज, राइट. इट विल बूस्ट द एक्सपोर्ट्स. तो अगर ग्लोबल लेवल पे एक्सपोर्ट हो रहा है तो इट विल बी एन इंसेंटिव फॉर द फार्मर टू प्रोड्यूस मोर. तो क्या है, इट विल बूस्ट द प्रोडक्शन ऑल्सो. And most importantly, now this is the point of value addition, it will help in women empowerment. Very important point not to forget, women empowerment. इसके लिए आपको सिर्फ सोचना है कैसे होगी women empowerment. अब अगर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है और कुछ वैल्यू एडिशन की बात हो रही है तो क्या है, मैक्सिमम यू कैन सी रूरल women are engaged in all these activities. वही है जो आपका यू कैन से कोई आपका सपोज आपका मैंगो पल्प की बात है, राइट. इट कैन टेक सो मेनी वेराइटी ऑफ, इट कैन बी प्रोसेस्ड टू सो मेनी थिंग्स. तो उसमें क्या है, विमेन दे आर इन्वॉल्व मैक्सिमम थिंग्स में, राइट. सो इट विल इंक्रीज, इट विल हेल्प इन रियलाइजिंग विमेन एम्पावरमेंट ऑल्सो. उनकी इनकम बढ़ेगी, राइट. सो दिस सच पॉइंट्स विल बी वैल्यू एडिशन. और ये कहाँ से आएंगे, आपकी interlinked the thinking parts it. Rather than mugging up the content, things will work this way, right? So this was all about the question, and I don't think so zyada aap likh bhi paoge, right? So now you people tell me, that do you think that you needed any expertise? Yes, Anjali, good. So now tell me, conclusion. I'll be just writing. Yes, Aman, I think you had raised the hand. I would like to know general understanding of the. Yes, definitely. Only general understanding of things are required. तभी तो it is general studies. It is all सब सिर्फ हमारे दिमाग में है. It's all in our mind that yes, we haven't read, we will not be able to write. Now just tell me कि इसमें आपको क्या expert की जरूरत थी,
क्या आपको 10 किताबें पढ़ने की जरूरत है ये आंसर लिखने के लिए? बट मेनी ऑफ यू व्हाट डू यू डू इज, आप उस स्ट्रेस में यू लीव द आंसर, यू लीव द क्वेश्चन, सो दैट कॉस्ट्स यू 1 whole year. जबकि क्या करना है, सिर्फ आपको you just have to think, right? So for the conclusion, अब देखो this question is very lengthy, right? So you have to justify other questions as well. So ऐसे आंसर में अगर आप एक सिंगल लाइन भी कंक्लूड करोगे, so that will be sufficient. The examiner will understand that yes, because of this he has justified each and every keyword of the answer. ठीक है? So अगर आप इस एक आध क्वेश्चन को विदाउट कंक्लूजन भी छोड़ रहे हो, the marks will not be cut. That will be fairly justified, right? So लेकिन still if you have to write the conclusion, you can touch upon few areas like your contract farming that is in news, that government wants to promote contract farming. So we can write that apart from food processing, crop insurance, MSP, some more reforms are required, like your changes in the APMC Act. अभी middleman की बात करी थी, food processing की बात हो गई है आपकी MSP की. So few changes are needed in the APMC acts. We need to introduce contract farming to achieve the vision of doubling farmers' income by 2020 and improve our agriculture growth, right? Or you can, the other way of concluding is about that yes, through all these reforms like MSP, crop insurance and food processing, we will be able to achieve the twin objective of growth and equity of the nation. That's it, done, right? इससे ज्यादा नहीं लिखना है कुछ. Okay, I hope things are clear. It was a brainstorming exercise. Okay, good.